সবাই নাম লিখবে, ঠিক আছে? চ্যাটে নাম লিখে রাখবে, রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে, নামটা প্রেজেন্ট দিয়ে দাও তো ওখানে। ওকে, so let us start. Today's lecture is, it is the continuation. Okay, we were learning about the infiltration only. Now we will, what we have learned, we learn what are the terminologies. Okay, what are the different infiltration, what do you mean by infiltration rate, infiltration capacity? Okay, what is the relationship between rate, capacity and intensity of precipitation? Okay, so today we will learn how we will measure infiltration. So the topic that will be covered is different methods. Okay, we will learn about the instrument which is known as infiltrometer. Okay, for evaporation it was evaporimeter. For evapotranspiration it was your lysimeter. Okay, for transpiration it was your phytometer or potometer. Now for infiltration, the instrument that is used is known as infiltrometer. Okay, there are two types of infiltrometer, and there is one more instrument which is used for measuring infiltration is rainfall simulation. These both are your physical method of measuring infiltration. Okay, how we will go to the field and we will collect data and we will measure the infiltration in the field. This is known, that's why it is called physical. And another technique is the empirical method. Okay, there are many equations that has been developed by many scientists. Okay, among them this is the important, this one is most important, which comes in your gate as well as in your semester also, for semester purpose, which is called Horton's infiltration equation. These are the empirical method. That means they have developed some equation after conducting several experiments. Okay, so we will learn about it. Now our first topic was the method of infiltration measurement. That means, see, method I have classified into two, that is physical, which will go to the field and measure. Okay, and another is empirical. There are others, equations are also there, but this one is the important, so I will teach this one only. Okay, now comes the physical, as I said, infiltrometer and rainfall simulator. First is your infiltrometer, which is also known as flooding type. Okay, flooding type, why we will see why it is called flooding type. Okay, whereas this is the rainfall simulator. Now simulator means what? Here we will consider, we will, what we will say, we will simulate our experiment as if rainfall has occurred. Okay, how rainfall occurs, similarly our experiment will be conducted in the same manner. We will produce some raindrops. Okay, that's why it is called rainfall simulator. Whereas here we will just pour water, that's why it is called flooding type. Among the under this there are two types of the instrument. First is single ring or single cube infiltrometer. Okay, remember single ring. Why single ring? Okay, I will see, you will see in the picture. Another is double ring. So there we are using two rings, and here we are using only one ring. Okay, now let us see what is this single and double ring. Okay, see, single ring, this is the cross sectional elevation, sorry, this is the uh, we have cut the section. Okay, we have cut the instrument from the top and we are seeing from the side. Okay, it looks like this. This is the ground and this is the ring. See, here we are using only single ring, that's why it is called single ring infiltrometer. How it looks like this. See, it's a metal cylinder. Okay, we will drive that metal cylinder into the soil. Okay, then we will pour water, that's why it is called flooding. See, it looks like flooding. We will pour water over it and we will measure the amount of the water that has been infiltrated with duration of time. Okay, मतलब कि तुम पानी डालोगे, ठीक है, एक सर्टेन डेप्थ तक हमको मेंटेन करके रखना है, विच इज 5 सेंटीमीटर. ओके, देखो यहाँ पे बोला है इसका डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है. लेंथ इज योर 60 सेंटीमीटर. ओके, उसमें से 50 सेंटीमीटर शुड बी इनसाइड द ग्राउंड, ड्रिवन इनसाइड द ग्राउंड, पूरा ग्राउंड के नीचे एकदम गाड़ देना है. ठीक है, ऐसे. और योर रिमेनिंग 10 सेंटीमीटर विल बी अबव द ग्राउंड. अब उसमें से ये 5 सेंटीमीटर जो है, ये गैप एक लेबल हमको वाटर मेंटेन करना है, विच इज योर 5 सेंटीमीटर. मतलब ये जो लेबल है, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे तुम्हारा ये जो मेजरिंग वो है, स्केल है, अब ये मेंटेन करके रखना है। अब तुम पानी डालोगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर डिफिशियंसी, मतलब सॉइल में कुछ मॉइस्चर है ही नहीं, तो क्या करेगा वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। देखो ये नीचे की तरह एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस वाटर विल रिड्यूस। ओके, फिर से हमको मेंटेन करना है, पानी फिर से डालना है, ठीक है। और फिर से डाल के हम देखेंगे कि कितना टाइम में कितना पानी नीचे गया था। So we will get the amount of the water, level of the water. Okay, we know the depth of the water, we know the cross sectional area, so we will know the volume of the water that has been infiltrated, और कितना टाइम में infiltrate हुआ वो भी हम मेजर करते जाएंगे। तो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन क्या है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन इन्फिल्ट्रेटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वो पानी नीचे गया। तो हमको इजीली निकल आएगा, इफ वी नो द डेप्थ, इफ वी नो द क्रॉस सेक्शन, वी विल गेट द वॉल्यूम, depth into cross section will get the volume of the water that has been poured. Okay, और कितना टाइम में वो नीचे गया, तो वो तो हम लोग मेजर कर ही लेंगे। सो वी नो द टाइम ऑल्सो, सो वी नो वॉल्यूम, वी नो टाइम, जस्ट डिवाइड कर दो वॉल्यूम को टाइम से, वी विल गेट द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। सो ऐसे हमको मेजर करना है, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, सी व्हाट, यहाँ पे देखो पानी क्या हो रहा है, हमको तो चाहिए था इस एरिया का इन्फिल्ट्रेशन कितना है, सिर्फ इस वाटर का ही, मतलब इस सॉइल का ही चाहिए था, राइट, इसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन है। लेकिन तुम जब पानी डालोगे तो ड्यू टू लैटरल इन्फिल्ट्रेशन, देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें भी तो सूखा है, यहाँ पे भी तो सूखा है, ये भी तो एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, पानी सिर्फ नीचे की तरफ, हमारा एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हम क्या पकड़े थे, ये वाला पकड़े थे, इतना ही एरिया हम कंसिडर किए थे, ठीक है, मतलब इतना एरिया हमको कंसिडर करना चाहिए था, इतना एरिया में कितना पानी इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ड्यू टू लैटरल इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जा रहा है, ये एरिया बढ़ जा रहा है, राइट, सी ये एरिया क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, एंड वी डोंट नो दैट एरिया, सो वी कांट से कि यहाँ से जो भी हम लोग मेजर किए थे, मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस एरिया में गया है कितना टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल एरिया ये वाला है, इतना एरिया वो सींच रहा है, राइट, सोक कर रहा है। सो वी कांट से दैट this is whatever that value we are obtaining from this instrument single ring is the correct infiltration value, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एरिया भी ज्यादा हो जा रहा है, एरिया ज्यादा हो जा रहा है मतलब ज्यादा वॉल्यूम वो एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द लैटरल इन्फिल्ट्रेशन। तो ये हमको सही रीडिंग नहीं देगा, तो इसीलिए इसको मॉडिफाई करने के लिए या इसके जो भी डिसएडवांटेज है उसको रेक्टिफाई करने के लिए अनदर काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हैज बीन डेवलप्ड। ओके, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक ऐसा क्लिक आएगा तो तुमको डिटेल्स में मिल जाएगा कि वहां पे सब चार्ट वाट है, कैसे मेजर करना है, ठीक है, सब एक्सपेरिमेंट के बारे में अभी हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए देखो तुम्हारा 2 रिंग दे दिया है, ठीक है, देयर विल बी 2 रिंग्स, इसीलिए इसको डबल रिंग बोल दिया है। एक है इनर, एक है आउटर, इनर का होगा 30 सेंटीमीटर, आउटर का होगा तुम्हारा 60 सेंटीमीटर डाया। अब ये क्यों, क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि तुमको पानी देखो दोनों में ही डालना है, यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लैटरल मूवमेंट हो रहा था हमको, लेकिन मेजर करना है कहाँ से, we will measure the data or the volume of the water that has been absorbed or infiltrated only from the inner ring, मतलब सिर्फ हमको इनर रिंग का डाया ही हमको, मतलब क्रॉस सेक्शन ही लेना, कंसीडर करना है, नॉट द आउटर रिंग। ये आउटर रिंग इसलिए दिया है सो दैट ये जो लैटरल तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें साइड साइड में जो भी पानी एब्जॉर्ब करेगा वो यहाँ से जो पानी हम देंगे वहीं से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ना कि वो इस वाले से एब्जॉर्ब करेगा, वो इस वाले से ही, यहाँ पे जो पानी दे रहे हैं यहाँ का जो भी सॉइल है वो इस वाले से जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो देखो इसका ऐसा एक डायग्राम हो रहा है, मतलब ये पानी का इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ इसमें जा रहा है और ये पानी का इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा स्प्रेड होके उस तरफ जा रहा है, बट हम क्या कंसिडर, देखो इसका एरिया और इसका एरिया अप्रोक्स है, राइट, तो इसीलिए जो भी हम यहाँ से डाटा लेंगे कि जितना कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट विल गिव अस द एक्यूरेट, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, कंपेयर टू द सिंगल रिंग, दैट्स व्हाई डबल रिंग हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। अब इसका देखो ये है डायमेंशन, 30 सेंटीमीटर डाया, इसका 60 सेंटीमीटर, एंड द टोटल लेंथ इज योर लेंथ इज योर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले कितना लेंथ था, पहले था 60 सेंटीमीटर, अभी ये घट गया है तो 25 सेंटीमीटर कर दिया है, जिसमें से तुम्हारा 15 सेंटीमीटर रहेगा जमीन के नीचे और 12 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, और यहाँ पे भी वाटर लेवल मेंटेन करना है कितना, 5 सेंटीमीटर तक,
जैसे ही 5 सेंटीमीटर के नीचे जाएगा फिर से पानी डालोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते देखना है कि कितना, मतलब हमको मेजर करते जाना है कि सपोज पानी घट गया, कितना घटा हम मेजर कर दिए, कितना टाइम में घटा वो भी मेजर कर दिया, ठीक है। फिर से पानी डालोगे, देखो फिर से पानी डालोगे, फिर से लेवल को एक स्टैटिक लेवल में रख दोगे, देखोगे कि फिर से वो नीचे जा रहा है, फिर से कितना टाइम में वो नीचे गया वो मेजर करते रहते हमको देना है, और कितना पानी हम डालते जा रहे हैं वो भी हमको काउंट करते रहना है, ठीक है। सो वी नो द वॉल्यूम ऑल्सो, वी नो द टाइम ऑल्सो, सो वी विल गेट द, see this is the formula कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड, वॉल्यूम बाय एरिया, ओके। इतना डेप्थ ऑफ वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड, वो वॉल्यूम हमको पता है, कितना पानी हम डाले, कितना लीटर ऑफ वाटर हम डाले, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इनर, ये वाला रिंग का हमको पता है, डिवाइड कर दोगे, विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड। अगर तुमको टाइम पता है तो जस्ट टाइम को डिवाइड कर दोगे, ये जो भी वॉल्यूम डेप्थ ऑफ वाटर रहेगा उसको डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो हमको रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन मिल जाएगा। क्लियर टिल नाउ एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सी डी इज योर डायमीटर ऑफ द इनर रिंग, ये सिर्फ हमको वही लैटरल जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाला दिया गया है, ठीक है हमको, लेकिन यहाँ का ही पानी चाहिए। अब मेन ड्रॉबैक क्या है दोनों का ही, सिंगल रिंग और डबल रिंग का ड्रॉबैक क्या है कि पानी कभी ऐसे आता है, हम तो देखो कितना फ्लड करके दे रहे हैं बारिश का पानी, हम तो इन्फिल्ट्रेशन कब होता है, बारिश जब होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है, फिर वो एब्जॉर्ब कैसा करता है, जैसे रेनफॉल होने के बाद कितना एब्जॉर्ब, दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे हम तो पानी पूरा एकदम गैलन गैलन से वाटर डालते जा रहे हैं, राइट। पानी का बारिश कभी ऐसे आता है इतना इतना करके नहीं आता है, वो ड्रॉप्स में आता है, राइट, रेन ड्रॉप्स में आता है। सो यहाँ पे वो जो होता है ड्यू टू रेन ड्रॉप, हम कल पढ़े थे इम्पैक्ट, मतलब ऐसे जो पानी आता है बारिश का पानी, तो इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट की वजह से ये छोटा छोटा पार्टिकल्स टूट जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होके जो भी पोर्स है उसमें जाके अटक के वो क्लॉग कर देगा, जिससे कि इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, राइट, जिससे इनफिल्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप हैज नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब यहाँ पे जैसे बारिश होता है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन में डिक्रीमेंट होता है, राइट, रिडक्शन होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये हम बोल दिए, एक्सप्लेन कर दें यहाँ पे, तो वो नहीं हम लोग सिमुलेट कर पा रहे, वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है एक्चुअल में, जैसे बारिश आता है उसको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका मेन डिसएडवांटेज। और एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो ड्रिव कर रहे हैं हम लोग, तो इसको गाड़ रहे हैं, लाइक देखो इसको पूरा एकदम ड्राइव कर रहे हैं, नीचे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, जो भी इसका लेयर स्ट्रक्चर है इट विल गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है, जो भी इसका स्ट्रक्चर का पैटर्न था नीचे सॉइल का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो हमको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि जो जैसे बारिश होता है वैसे ही सिमुलेट कर पाए, वैसे ही रिप्रेजेंट कर पाए। तो दोनों का ही डिसएडवांटेज को हटा के और एक एक्सपेरिमेंट आ गया है जिसका नाम है तुम्हारा रेनफॉल। अच्छा, ये वाला से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा वीडियो दिख जाएगा, ये देखना है तुम लोग को, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन टेस्ट कैसे होता है, और यहाँ पे डिटेल्स एक्सपेरिमेंट के थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो उसी को करने के लिए हम लोग को वो डिसएडवांटेज को कंसिडर करने के लिए क्या आया, रेनफॉल सिमुलेटर, ठीक है। एक ये छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे, ऐसे नहीं दिखता लेकिन एक एग्जांपल हम दे रहे कि देखो ऊपर से बारिश दे रहे, पानी दे रहा है, इसमें तुम्हारा पोर्स है, राइट। अब वो क्या हो जाएगा, बारिश की तरह फॉर्म हो रहा है, राइट, इट विल क्रिएटिंग अ रेन ड्रॉप, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेशन है, राइट, पी है। अब आके ये वाला है तुम्हारा सैंपल, जिसके ऊपर मतलब जो सॉइल सैंपल हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसके इन्फिल्ट्रेशन हमको चाहिए, तो एक सैंपल कलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। अब बारिश का पानी आ रहा है, आ रहा है, तो क्या हो रहा है, कुछ कुछ इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे रियल में होता है उसको वैसे सिमुलेट कर पा रहे हैं। तो अब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, सपोज उसको हम आई से डिनोट किया है, और कुछ तुम्हारा क्या हो जा रहा है, रन ऑफ होके निकल जा रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे रन ऑफ भी हो रहा है, वहां पे रन ऑफ कंसिडर ही नहीं किया, यहाँ पे रन ऑफ भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जाके आर हो जा रहा है। सो वी नो द प्रेसिपिटेशन, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। वी नो द व्हाट अमाउंट ऑफ द रन ऑफ, ये कलेक्ट करना है हमको, ये मेजर करना है, ठीक है, कितना रन ऑफ जनरेट हुआ है, ठीक है। सो कैन वी नो द इनफिल्ट्रेशन, कितना हो रहा है, जितना बारिश आया उसमें से कुछ इन्फिल्ट्रेट हुआ, कुछ रन ऑफ हुआ, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू पी माइनस आर, ओके।
तो इस इक्वेशन से भी हमको इन्फिल्ट्रेशन रेट हमको पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड। अगर उसको डिवाइड बाय टाइम कर देंगे वी विल गेट द रेट। ओके, तो ये है एक एग्जांपल कि रेनफॉल सिमुलेटर कैसे काम करता है। अब आते हैं कि उसका डिटेल्स के बारे में। ये देखो यहाँ पे प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 2m to 4m, मतलब ये वाला देखो, इट लुक्स लाइक दिस। ओके, कि एक प्लान हम लिए हैं, यहाँ पे तुम्हारा सॉइल रखेंगे, ठीक है। इट मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब डिफरेंट फील्ड का सॉइल भी हो सकता है, एक साथ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सॉइल सैंपल, दूसरा सॉइल सैंपल रख दिया, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर, इसका जो विड्थ है दैट इज 2 मीटर, ठीक है। अब अलोंग द लेंथ हम नोजल्स रख रहे हैं, मतलब जो रेनफॉल का हो सिमुलेट करने के लिए नोजल्स दे दिए। अब वहां से पानी तुम फाउंटेन, उल्टा फाउंटेन सोचो ये, ठीक है, पानी तुम छिड़का रहे हो अब, ठीक है। तो इसका हाइट ऑफ फॉल कितना है, इट इज कंसिडर टू बी 2 मीटर, बोला गया ये 2 मीटर रखना है, ठीक है, रख दिए। अब बारिश का पानी आ रहा है, जैसे होता है, आने से क्या हो रहा है, इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारा इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पैक्ट की वजह से जितना तुम्हारा सैंपल इन्फिल्ट्रेट कर सकता है उस हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से करेगा, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वो रन ऑफ में चला जाएगा, ठीक है। सो we know the amount of the water that has been precipitated, we know the amount of the rainfall that runoff that has been collected, दोनों को माइनस कर दो, we will get the infiltration। ओके, सो ये वाला है तुम्हारा, ऐसा दिखता है एक्चुअल में, ठीक है। एक वीडियो का लिंक दे दिए, वहां पे जाके देखना, सिमुलेटर ऐसा ही दिख रहा है, वो लोग वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रेनफॉल सिमुलेटर। ओके, ये यहाँ से वीडियो तुमको दिखाई देगा। अब ये सब क्या था, दिस इज योर फ्लडिंग, देखो ये सब है तुम्हारा फ्लडिंग, मतलब पानी हम डाल के रख दे रहे, राइट, पूरा पानी को फ्लड करके रख दे रहे, इसलिए इसको फ्लडिंग बोलते हैं, ठीक है। वेयरएज दिस इज योर रेनफॉल सिमुलेटर, इसमें क्या एडवांटेज है, इसमें तुम्हारा इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बोलो जहां पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा वहां पे क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा ना ज्यादा होगा, पिछले क्लास और आज अभी जो पढ़ा है उस हिसाब से बोलो। इफ मोर द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल योर इन्फिल्ट्रेशन विल बी लेस और मोर, लेस मैम। यस लेस, क्योंकि वो जो बोले थे क्लॉग कर देगा, राइट, टूट जाएगा, इम्पैक्ट की वजह से तुम्हारा माटी टूट जाएगा, माटी टूटने से वो जो भी पोर्स था उसको क्लॉग कर देगा, तो इन्फिल्ट्रेशन होने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब कि वो लेस अमाउंट एब्जॉर्ब कर पाएगा सॉइल, ठीक है। अब उसी के बेस पर ये वाला आंसर दो, in which instrument rate of infiltration is more। अभी जो पूछे उसका ऑपोजिट हम पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रतीक एंड अपार्ट फ्रॉम पुलक, प्लीज आंसर, अदर स्टूडेंट्स, ओके, प्लीज गिव आंसर्स। टेल मी, in which instrument rate of infiltration is more, फ्लडिंग या रेनफॉल सिमुलेटर में? फ्लडिंग के बोलो, फ्लडिंग के बोलो। Who said, who gave flooding? Let's see, आंसर की टाइप करेছো তোমরা? कोई आंसर टाइप नहीं किया है और बोल भी नहीं रहा है, बोलो। सिर्फ अटेंडेंस देने से नहीं होगा, अटेंटिव भी होना चाहिए। रेनफॉल सिमुलेटर। Okay, Syamashri answer is rainfall. What about the others? Who said Ma'am, rainfall simulator. okay. So the correct answer is your rainfall. More. I said more. Infiltration is more. শ্যামাশ্রী, কোশ্চেন ভালো করে পড়ো, ঠিক আছে, আমিও ভুল ম্যাম করলাম। আমি লেস ভেবেছিলাম, সরি ম্যাম। In which instrument rate of infiltration is more? मैम ताले फ्लडिंग में more होगा, ओके। इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, रेनफॉल सिमुलेटर में इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, सो इसका ऑपोजिट आंसर है। सो हाँ, करेक्ट आंसर शुभजीत या कौन दिया था शायद आंसर। सो फ्लडिंग टाइप आंसर इन्फिल्ट्रोमीटर में तुम्हारा रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन विल बी मोर, ओके। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। Now let us, these are all what, these are your only the physical method, okay, we are going to the field and collecting data, whereas now comes your empirical method, okay। Now before starting the empirical method, let us talk about some terminology, I have already explained about it, okay। अब बोलो कि infiltration rate क्या है, infiltration capacity क्या है, बोलो पिछले क्लास के हिसाब से।
What is infiltration rate and what is infiltration capacity? हेलो मैम मैक्सिमम যেটা হবে সেটা ক্যাপাসিটি। আচ্ছা রেটটা কি? ম্যাম রেটটা ইনফিল্ট্রেশন আর ইনফিল্ট্রেশন কত রেট, স্পিডে ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে? यस इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट। ये जो वाटर नीचे जा रहा है वो प्रोसेस को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। अब इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कितना स्पीड में नीचे जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसका यूनिट क्या रखे, एमएम पर आवर। अब स्पीड का यूनिट तो वही है ना, मीटर पर सेकेंड, वैसे ही एमएम पर आवर, यहाँ पे एमएम पर आवर कर दिया, ठीक है। और कितना मैक्सिमम स्पीड में वो जाएगा उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ओके, अब आते हैं कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, बोला गया है इनिशियली बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तुम जितना पानी, अभी एक वीडियो देखना, जो हम वीडियो दिए थे वो देखना, कि देखना पहले बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, ठीक है। इनिशियली द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी विल बी वेरी हाई। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो पानी जितना, क्योंकि फिल हो जा रहा है, राइट, मॉइस्चर इज बीन फिल्ड। अब धीरे धीरे जो गैप्स था वो फिल हो जा रहा, तो उसका क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करने का क्षमता वो कम होता होता जाएगा, ठीक है। तो स्लोली दैट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो भी रेट है, वो उसका रेट क्या हो जाएगा, जो स्लोली डीके होना स्टार्ट कर देगा, कम होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला ग्राफ देखो, इनिशियली देखो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेट में कर रहा है, अब स्लोली स्लोली वो डिक्रीज होता होता जाएगा, लास्ट में जाके क्या करेगा कि वो उसका एक कांस्टेंट रेट में वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट कर्व, इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कर्व, ओके, इन्फिल्ट्रेशन रेट कर्व इसको बोलते हैं। इनिशियली बहुत हाई रहेगा, फिर स्लोली स्लोली रिड्यूस करते करते जाएगा, और सर्टेन एज में जाके, सर्टेन टाइम में जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यही इसका मेन फंडा है एम्पिरिकल मेथड का, ठीक है। सो बोला है देखो, एज ऑब्टेन फ्रॉम इन्फिल्ट्रोमीटर इज एसेंशियली ऑब्जर्व टू बी डिकेइंग कर्व, मतलब ये जो इसको डीके बोलते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम टू मिनिमम, अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, ओके। तो उसमें से जो मेथड हम लोग इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर हॉर्टन्स इक्वेशंस, ओके। अब देखो, इससे पहले एक क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन भी हमको जानना है, ठीक है। मतलब कि इन्फिल्ट्रेशन रेट है कि कितना तुम्हारा एब्जॉर्ब हो रहा है कितने स्पीड में, और इन्फिल्ट्रेशन, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, जिसको ये वाला को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ टी से, ये याद रखना, बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ टी, ठीक है, मतलब एट सर्टेन टाइम व्हाट इज द इन्फिल्ट्रेशन रेट, इसका यूनिट है एमएम पर आवर। और ये जो कैपिटल एफ टी है कि कितना वाटर इनफिल्ट्रेट हुआ, हाउ मच वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड, और इसका यूनिट क्या होगा, आइदर सेंटीमीटर, इंच या मिलीमीटर में होगा, क्लियर। स्मॉल एफ टी है तुम्हारा रेट, और ये है अमाउंट, क्लियर, इतना याद रखना है, ठीक है। अगर एफ टी ऐसा है, रेट ऐसा है, ठीक है, तो तुमको अमाउंट कैसे निकलेगा, what we have to do if you know rate, okay, then if someone asks you to find the ft, मतलब कैपिटल ft which is the amount, तो क्या करोगे, इस ft को, इस ft से कैसे निकलेगा, you know the rate, okay, now they have asked you what is the amount, देखो इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर आवर है, इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर है। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो करने के लिए क्या चाहिए हमको, टाइम से मल्टीप्लाई करना। यस, टाइम से मल्टीप्लाई करना, ये दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग बोल ही दिए है कि इसका कर्व ऐसा होता है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ लाइक दैट, राइट, इट हैज लाइक दिस, राइट, मतलब इसका कुछ एक इक्वेशन होगा। अब इक्वेशन को तुम स्मॉल एफ टी से कैपिटल एफ टी जब करने जाओगे, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्या करोगे, तुम इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक तुम लोग कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमको इंटीग्रेट करना है, वो कैपिटल एफ टी निकालने के लिए देखो इंटीग्रेट हम किए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन किए हैं। सो स्मॉल एफ टी को इंटीग्रेट कर दिए, ये जो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट द एफ टी। ये वाला क्लियर है ना एवरीवन? yes ma'am. ओके, अब आएंगे हम Yes, ma'am. मेन में, ठीक है। तो हॉर्टन्स का जो इक्वेशन है, जो विच विल डिफाइन दिस कर्व, तो ये वाला कर्व जो ड्रॉ कर पाएंगे सब, देखो सब कर्व का एक ना एक इक्वेशन रहता है, स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन है, राइट, तुम्हारा पैराबोलिक का भी इक्वेशन है, तो ये जो डिके कर्व है उसका भी इन्होंने एक इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक इक्वेशन निकाला है, विच इज दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्टन्स इक्वेशन, तुम लोग नोट डाउन करके भी रख सकते हो, ओके, दिस वन।
सी एफ एट सर्टेन टाइम ऑफ टी, मतलब इन्फिल्ट्रेशन रेट एट अ गिवन टाइम ऑफ टी कितना होना चाहिए, हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। एफ सफिक्स सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ओके, अब ये वाला देखो, एफ सी क्या है, एफ सी हम बोले थे, क्या बोले थे कि एक कर्व होगा जो कि मैक्सिमम होगा, फिर स्लोली स्लोली वो कांस्टेंट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज योर एफ इनिशियल, मतलब इनिशियल जो कैपेसिटी है, इनिशियली बहुत ज्यादा रहता है, राइट, तो इसको एफ नॉट बोला है, ठीक है। अब जाके वो स्लोली कांस्टेंट जब हो जाएगा, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे तुम्हारा एफ का रीडिंग होगा, इस तरफ में तुम्हारा एफ का होगा, इस तरफ तुम्हारा टाइम का होगा, ठीक है। तो ये वाला जो वाई एक्सिस में जो रीडिंग आ रहा है, दिस इज एफ नॉट, और इसका करस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस में रीडिंग आएगा, दैट इज योर एफ सी, ओके, विच इज कांस्टेंट, इसीलिए इसको कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। तो एक इनिशियली वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, अभी इसलिए यहाँ पे ई टर्म आया है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, पहले मैक्सिमम होगा, फिर स्लोली स्लोली जाके कांस्टेंट रहेगा, और वही वैल्यू में वो फॉरएवर रहता रहेगा, विच इज कांस्टेंट एफ सी, ओके। अब ये जो माइनस के है, ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि ये डीके है, और के का है कि कितना रेट में वो डिक्रीमेंट करेगा, मतलब कितना रेट से ये जल्दी जल्दी डिक्रे कर रहा है ना कि स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं के, ओके, दैट इज योर डीके कांस्टेंट। और इसका यूनिट क्या है, पर आवर, मतलब टाइम टू द पावर -1 का मतलब है कि ये है आइदर पर आवर और पर डे, ठीक है, या पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूनिट ही ऐसा रहता है, पर आवर या पर डे या पर सेकेंड, ओके, के का। सो इट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। एफ सी हम बोले थे क्या, फाइनल इक्विलिब्रियम और कांस्टेंट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये जो कर्व है इट डिस्क्राइब्स द कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है, इसीलिए इस कर्व का नाम भी क्या बोलते हैं, इस कर्व का नाम है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी रेट कर्व, ओके, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, IFC भी बोल सकते हैं इसको, इनफिल्ट्रेशन, सॉरी, मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, ओके, इसको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व भी बोल सकते हैं, ओके। और एफ नॉट क्या था, इनिशियल इनफिल्ट्रेशन जो था मैक्सिमम एट टाइम इक्वल्स टू 0, और ये वाला था सपोज एट टाइम इक्वल्स टू, मतलब कुछ भी एक टाइम में, टी में, ठीक है। तो TD क्या है यहाँ पे देखो, और ये वाला 0 टी टाइम कहाँ से जाता है, तुम्हारा 0 स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल टू द एंडिंग ऑफ द रेनफॉल, स्टार्टिंग ऑफ स्टॉर्म से लेकर एंडिंग ऑफ स्टॉर्म तक तुम्हारा ये टी का रेंज वेरी करता है, ओके, इसलिए ये वाला ऐसा दिया है। क्लियर ये वाला इक्वेशन एवरीवन? यस मैम। ओके, सो Yes, अब ma'am. इसको अगर हम डायग्राम में शो करेंगे तो देखो ऐसा एक है, ठीक है। Horton's equation concluded that initially the infiltration will be maximum which is F naught and with time it decreases, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये डिक्रीज होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली, इसीलिए ई टर्म है, एंड अटेन्स अ स्टेडी स्टेट, अब जाके ये स्टेडी स्टेट करेगा एंड रिमेन विद दैट वैल्यू फॉरएवर, ठीक है। इसमें ये जो भी वैल्यू है दैट इज योर FC, ये वैल्यू है FC, ओके। अब कोई भी तुमको अगर FT का बोल देगा कि बोलो ये रेट दे दिया, ये इक्वेशन दे दिया, बोलेगा कि फाइंड आउट द इनफिल्ट्रेशन रेट आफ्टर 10 मिनट्स, राइट। स्टार्टिंग जो हुआ था सपोज 10 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो बोला है 12:30 में उसका इनफिल्ट्रेशन रेट क्या था, उस जमीन का इनफिल्ट्रेशन रेट क्या था, कुछ नहीं, यहाँ पे 30 लिखना है, राइट, टी की जगह पर 30 बीत जाएगा। अब उसको देखना है कि ये आवर में है कि सेकंड में, तो यहाँ पे आवर में कन्वर्ट कर देना है, तो जहां जहां पे टी का वैल्यू आ रहा है वहां पे 30 मिनट या 0.5 आवर यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और ये सब वैल्यू तुमको दिया रहेगा, एफ नॉट FC एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, क्लियर। तो ये तो सिंपल है, इस वाले इक्वेशन से अगर तुम टी का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, व्हाट यू विल गेट द इनफिल्ट्रेशन रेट, हम बोल ही दिए जिसका यूनिट है इनफिल्ट्रेशन रेट, मतलब मिलीमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर टाइम में, सपोज देखो टी इक्वल टू कुछ टाइम में, जो भी यहाँ से अगर वो पॉइंट हम अगर लेंगे इस कर्व से, तो उसको ऐसे डिनोट करता है, FT से डिनोट करता है, ठीक है। तो तब उस जगह का इनफिल्ट्रेशन रेट कैसा था उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, टाइम तुमको दिया रहेगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया सिर्फ रेट का, ठीक है। अब बोलेगा कि तुमको बोलेगा कि कितना
अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड, मतलब कैपिटल एफ निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ द वाटर हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको क्या करना, हम बोले थे वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, तो उसके लिए हमको ये एरिया चाहिए। अगर बोलेगा कि थ्रू आउट द स्टॉर्म, मतलब पूरा जब तक स्टॉर्म हुआ कितना वाटर इनफिल्ट्रेट हुआ, मतलब यहाँ पे जाके तुम्हारा स्टॉर्म खत्म हुआ, ठीक है, टीडी। So the area from 0 t equals to 0 to t equals to td, the area under this curve will give you the total amount of the water that has been infiltrated, okay, during the storm period, during the entire storm period. अब ये एरिया निकालने का क्या फंडा है, इसके लिए कुछ नहीं, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस कर्व, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया है इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, मतलब कि t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है टीडी तक कितना होगा अमाउंट ऑफ वाटर, वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, तो उसी के लिए ये वाला इक्वेशन आ रहा है, देखो। सो द क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी और द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर इनफिल्ट्रेटेड एट एनी टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेन स्टॉर्म, देखो एनी टाइम, वेदर इट मे बी एंड, या बोल देगा लास्ट 30 मिनट्स तक कितना था, या बोलेगा लास्ट 10 मिनट्स तक कितना था, ठीक है, ये सब भी बोल सकता है। तो एनी टाइम टी, तो उसको कैसे निकालेंगे, वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू टी, उस टाइम तक, ठीक है। तो बोलेगा कि फर्स्ट बारिश हुआ था 1 घंटे के लिए, तो बोलेगा कि फर्स्ट 20 मिनट्स में कितना अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा इनफिल्ट्रेट हुआ है, तो क्या होगा इसका लिमिट, T1 विल बी 0, T2 विल बी, आई सेड फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स, मतलब ये T1 तो 0 है, इसका लोअर लिमिट इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे t इक्वल्स टू सपोज 20 मिनट्स है, ठीक है। सो 20 मिनट्स तक जितना भी एरिया आएगा वो हमको चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए तुम्हारा लिमिट क्या है, 0 से t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे लोअर लिमिट विल बी t इक्वल्स टू 0, T1 इक्वल्स टू 0 एंड T2 इक्वल्स टू 20। ओके, तो T1 इक्वल्स टू 0 से T2 इक्वल्स टू 20 में जो एरिया आएगा दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट हैज बीन इनफिल्ट्रेटेड इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। तुम्हारा स्टॉर्म यहाँ तक चल रहा है, लेकिन हम सिर्फ बोले थे फर्स्ट 20 मिनट्स का निकालो, तो सिर्फ हमको ये वाला एरिया चाहिए, ना कि पूरा एरिया। क्लियर? अगर बोलेगा पूरा निकालो तो क्या करोगे, T इक्वल्स टू 0 टू स्टॉर्म जितना, सपोज 1 घंटे के लिए था तो T इक्वल्स टू 1 आवर तक, यहाँ पर 60 मिनट्स तक, ठीक है। ये क्लियर है ना ये फंडा? यस मैम। ठीक है, जस्ट इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये वाला एक लास्ट में एक ऐसा इक्वेशन आएगा, ठीक है, जहां पे तुम्हारा 0 टू t का लिमिट रहेगा, ठीक है। तो उसको तुम डिराइव भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम बोले थे पूरा थ्रू आउट द स्टॉर्म, अगर बोलेगा तो ये पूरा एरिया हमको चाहिए, ठीक है। सपोज ये 60 मिनट्स के लिए था, मतलब 1 आवर के लिए था, तो t इक्वल्स टू 0 टू T1 इक्वल्स टू 0 टू T2 इक्वल्स टू 1 आवर तक है, यहाँ पे 0 टू 1 आवर, इसको इंटीग्रेट करना है उस हिसाब से, ठीक है। तो यही है, जैसे यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करके दिखाए हैं कि कैसे ये वाला से ये वाला आया है। ओके, हाउ वी हैव डिराइव फ्रॉम दिस, वी हैव रीच फ्रॉम दिस टू दिस इक्वेशन। ओके, इट हैज बीन डिराइव्ड हियर। कुछ नहीं, इंटीग्रेट करो। सपोज ये जो बोले T1 टू T2 इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब Ft का वैल्यू क्या था, Ft का वैल्यू था तुम्हारा इक्वेशन में, देखो ये वाला था Ft का वैल्यू, वही वैल्यू हम यहाँ पे Ft के जगह पर इंस्टेड ऑफ Ft वी विल पुट दैट वैल्यू। ओके, दैट इज F नॉट, ये जो वैल्यू देखो Fc प्लस F नॉट माइनस F, ठीक है, और dt। अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन आई थिंक ये वाला इजी है, सबको आता होगा, राइट। अब हम लोग चाहिए थे फुल 0 से लेकर पूरा t तक चाहिए था, 0 से t तक, मतलब जितना भी ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म है, तो इसीलिए T1 को 0, T2 को t कर दिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इफ Fc dt क्या हो जाएगा, Fc इंटू t, ठीक है। अब ये वाला तो तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, तो e टू द माइनस के टी इंटू dt क्या हो जाएगा, e टू द माइनस के टी बाई माइनस के टी, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस के टी होके क्या हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था, अब ये माइनस के टी था, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है, 0 टू t, अब बस लिमिट पुट कर दो दोनों में, तो विल गेट दिस फाइनल वैल्यू। ओके, दिस इज इजी, कुछ नहीं है ये वाला, इंटीग्रेशन बस dt करने से हो जाएगा, ठीक है।
अब let us do this problem then. Anyone? Everyone, please read this problem. Okay? यहाँ पे हम हिंट भी दे दिए है तुम लोग को कि कैसे करना है, क्या करना है. देखो क्वेश्चन क्या है, पहले बोलो कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. तो इंटीग्रेशन तो आई थिंक आता होगा, ज्यादा कुछ नहीं, तो ये वाला भी देख सकते तुम लोग. ओके, सो the parameters in Horton's infiltration equations are given as, मतलब वो जो पैरामीटर एफ नॉट एफ सी जो भी है, ठीक है, क्या क्या दिया है. एफ नॉट इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर पर आवर. यूनिट देखना है, याद रखना, यूनिट किस में मांगा उसको कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, अब एफ नॉट इज इक्वल टू 7.62 सेंटीमीटर पर आवर. प्लीज राइट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट डाउन. 20 मिनट बाकी है, हो जाएगा, करो. हॉर्टन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन का पैरामीटर्स दे दिया है. एफ नॉट लिखो, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 7.62 सेंटीमीटर पर आवर. ओके, एफ सफिक्स सी, एफ सी जो कांस्टेंट था, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1.34 सेंटीमीटर पर आवर. एफ सी इक्वल्स टू 1.34 सेंटीमीटर पर आवर. ओके, के इज इक्वल्स टू 4.182 पर आवर. 4.182 per hour, k का वैल्यू. ओके, नाउ फॉर द assume continuous ponding the cumulative infiltration. देखो क्या बोला है, cumulative infiltration मतलब क्या निकालना है यहाँ पे. कैपिटल एफ टी. यस, गुड गुड, कैपिटल एफ टी बोला है. ठीक है, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन. ओके, एट द एंड ऑफ 2 hours, मतलब स्टॉर्म्स हुआ था सपोज 2 घंटे के लिए, मतलब टाइम बोल दिया. एट द एंड ऑफ 2 hours मतलब 2 घंटे के बाद तुम्हारा कितना अमाउंट टोटल इन्फिल्ट्रेट हुआ है. मतलब T1 इज इक्वल्स टू 0, T2 इक्वल्स टू 2 hours. ओके, अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर में ही मांगा है. राइट, सो सेंटीमीटर पर आवर है, ये वाला आवर ही है, तो टी को भी आवर में रख दो और इन लोग को सेंटीमीटर पर आवर में ही रख दो. करके निकालो. तो पहले देखो हॉर्टन्स इक्वेशन जो है विच इज डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन. ओके, यहाँ पे जो जो वैल्यू है सब बिठा दो. एफ सी का वैल्यू कितना है, 7.62. एफ नॉट का सॉरी हाँ एफ नॉट का वैल्यू है, सॉरी एफ सी का है 1.34, एफ नॉट का है 7.62. ओके, ये बिठा दो. के का वैल्यू भी दिया है. ठीक है, बिठा के तुमको एफ, ये है स्मॉल एफ टी, अब इसको कैपिटल एफ टी चाहिए तो इंटीग्रेट करना है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रेट करना है. जैसे यहाँ पे हम एफ टी को इंटीग्रेट कर दिया है. ठीक है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो. और T1 है तुम्हारा क्या, 0. ठीक है, स्टॉर्म जब स्टार्ट हुआ और बोला है एट द एंड ऑफ 2 hours, तो T2 विल बी 2 hours. तो 0 से लेकर 2 hours तक कितना इन्फिल्ट्रेशन, टोटल इन्फिल्ट्रेशन क्यूमुलेटिव बोला है, मतलब कि कितना टोटल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है. ठीक है, वो निकालने के लिए बोला गया है. तो निकाल के बोलो तो हमको. देखो एफ टी एफ सी कितना था तुम्हारा, 1.34. राइट, सो 1.34 था प्लस ये वाला कितना था, 7.62. सो 7.62 माइनस 1.34. ओके, e टू द पावर, ओहो আচ্ছা তোমরা করো, এটা করে আমাকে বলো. লেখা হচ্ছে না এখানে. 4.182 था. कितना आ रहा आंसर, সবাই করছো? एवरीवन, Ma'am, 1.41. কি বল, এই তো দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ তো কোশ্চেন. Ma'am, 1.341. আনসার আমি করিনি, এটা দেখতে হবে আমাকে, তোমরা বলো. Horton's equation.
hot and F देखो FC is 1.34 okay, F naught is 7.62. না ম্যাম আমি স্মল এফটির কথা বলছি, যে আপনি বললেন না বের করতে হর্টনস ইকুয়েশনটা। স্মল ft তে তো কেন হবে, স্মল ft তে একটা ইকুয়েশন আসবে রাইট, small ft will be your 1.34 plus हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 7 माइनस 7.62 माइनस 1.34। देखो तुम्हारा इक्वेशन विल बी योर इक्वेशन विल बी यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ft का इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा 1.34 ठीक है प्लस 6.28 ओके e टू द पावर माइनस जो भी वैल्यू है 4.182 t, this will be the equation। देखो मैच করছে কিনা। ম্যাম এখানে টি এর ভ্যালুটা নেব না তার মানে? টি এর ভ্যালু তো তোমাকে ইন্টিগ্রেট যখন করবে তখন লাগবে, ইন্টিগ্রেশনে তো লাগবে, ইন্টিগ্রেশন মনে আছে তো। See first write down, 4.18 হ্যাঁ ম্যাম। see this is your answer okay, sorry this is your equation 1.34 plus 6.28 e to the power minus 4.182 t ठीक है। अब इसको dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, कितना से, इंटीग्रेट फ्रॉम योर 0 to 2 hours ओके एंड dt के साथ मल्टीप्लाई करो। अब करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1.34 t प्लस 6.28 बाई माइनस 4.182 e to the power माइनस 4.182 t, ऐसा इक्वेशन एक आएगा। मैम 4.18 हेलो मैम। হ্যাঁ मैम 4.18 আমার তো 1.5 এখানে দেখাচ্ছিলাম। ম্যাম मैम তলায় যে ইকুয়েশনটা এফটি আছে ওই ইকুয়েশনে বসালেও তো অ্যানসারটা আসবে না ইকুয়েশনে কেন বসাবে, আমি Capital কি FT, বললাম capital FT। তোমাকে ক্যাপিটাল এফটি বার করার জন্য ইন্টিগ্রেট করতে হবে, ডু হ্যাঁ, দিস ma'am, প্রসেস, integrate করেছি, ma'am। ইন্টিগ্রেট করেছো তো এখানে হ্যাঁ, এই calculate ফাইনাল ma'am। যেটা আছে এখানে বসাও। এফসি তোমার কত আছে দেখো আমি বলছি, এফসি হচ্ছে তোমার 7 পয়েন্ট কত ছিল এফসি 7.62 রাইট, 7.62 ইনটু টি ছিল 2 রাইট প্লাস Yes, ma'am। এফ নট হচ্ছে তোমার কত, এফসি 7.62 কোথায় 1.34 তো 1.34 ইনটু 2 প্লাস 7.62 মাইনাস 1.34 ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই কে, ডিভাইড বাই কে কত আসছে, কে হচ্ছে 4.182 ওকে ইনটু 1 মাইনাস ই ই করো ই এই ম্যাম ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে হচ্ছে 4.182 ইনটু 2 রাইট यस मैम 4.18 এটা ভুল আছে, আচ্ছা 4.18 সবার কি এসেছে 4.18? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম বলছি যে আমি একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম বলছি মানে এই ক্যাপিটাল এফটিটা তো মানে স্মল এফটিটাকে মানে ইন্টিগ্রেট করে হ্যাঁ 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 ইকুয়েশনটা বেরিয়েছে, তাহলে ম্যাম ওখানে মানে ডিরেক্টলি কেন বসাচ্ছি না আমরা মানে ভ্যালুগুলো, ওখানে তো সবকটাই দেওয়া আছে। এটা এটা দেখো এটা তোমার যদি মুখস্থ করতে পারো করো, না হলে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। হ্যাঁ ম্যাম এটা কি ডাইরেক্ট মুখস্থ করা সম্ভব? হ্যাঁ ম্যাম না, যদি এই টি এর ভ্যালু আমি দেবো দাঁড়াও তখন এই ইকুয়েশনটা কাজে লাগবে না, যখন আমি টিটা চেঞ্জ করে দেব। আচ্ছা এটা আচ্ছা টিটা যদি শুধু ইফ ইট ইজ ফ্রম স্টার্টিং অফ রেনফল টু সামথিং একটা দিয়েছে টি এর ভ্যালু তখন ঠিক আছে, কিন্তু যদি टी1 আমি বলেছি লাস্ট 30 মিনিটস মানে কি হচ্ছে তখন टी1 तो तुम्हारा स्टार्टिंग इज नॉट 0 राइट, टी1 विल बी 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा 60 যদি 60 মিনিটের রেনফল হয় তাহলে এখানে 1 হয় রাইট, ওকে তখন এটা কাজে লাগবে না, এটা তোমার এই ইকুয়েশনের জন্য কাজে লাগলো তাই আমি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে। এভরিওয়ান ক্লিয়ার? সৌভিক মাইতি আছো Yes, ma'am. ক্লিয়ার? Yes, ma'am. ওকে বাকিরা
মঞ্জিমা শুধু ইয়েস করছে, বাকি হ্যাঁ ম্যাম 4.18 এসেছে ম্যাম। ইয়েস ইয়েস, ভেরি গুড। অরিন্দম কাজ আচ্ছা, এবার আমরা নেক্সটে যাই। ওকে, নেক্সট প্রবলেমটা যদি দেখি তাহলে করতে পারবে, বুঝতে পারবে আমি কেন দিইনি ওটা, কেন তোমাকে মুখস্থ করতে হবে না। এটা করো তাহলে। देखो क्या बोला है, द इनफिल्ट्रेशन रेट, ओके, स्मॉल एफ, इनफिल्ट्रेशन रेट जेहेतु स्मॉल एफ टी इन अ बेसिन अंडर द पॉन्डिंग कंडीशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। मतलब ये वाला क्या हॉर्टन्स इक्वेशन की तरह दिख रहा है ना, एफ सी प्लस एफ एफ नॉट माइनस एफ सी टू पावर माइनस के टी लग रहा है हॉर्टन्स इक्वेशन, राइट, वेयर एफ इज इन mm पर आवर, यूनिट दिया है, ठीक है, एंड टी इज इन आवर, मतलब ये जो टी है दैट इज इन आवर। नाउ द टोटल क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन, अगेन यहाँ पे क्या बोला है, क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन, ओके, कैपिटल एफ टी बोला है निकालने के लिए, इन मिलीमीटर अप टू 1 डेसिमल बोल दिया कि इतना प्लेस तक रखना है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द, कहाँ पे बोला देखो, ड्यूरिंग द लास्ट 20 मिनट ऑफ अ स्टॉर्म ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन, मतलब तुम्हारा अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से खत्म हुआ स्टॉर्म, सो टी इक्वल्स टू 0 था, तरीके यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा टी इक्वल्स टू कितना था, 0 था, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा टी इक्वल्स टू कितना है, 30 मिनट्स है, राइट, 30 मिनट्स है। अब याद रखना कि इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, अभी फिलहाल हम 30 मिनट्स ही बोला है, तो बोला है ड्यूरिंग द लास्ट 20 मिनट्स, मतलब यहाँ पे जो 20 मिनट्स लास्ट है तब इनफिल्ट्रेशन कितना हुआ। अगर इसको हम 3 भाग में कर देंगे 10 10 10, ठीक है, तो लास्ट 20 मिनट्स मतलब ये है तुम्हारा लास्ट 20 मिनट्स, राइट, टोटल है तुम्हारा 20 मिनट्स, लास्ट 20 मिनट्स, ओके। तो इसका T1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 T1 क्या 0 से हो रहा है, नहीं, हाँ गुड, T1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मिनट्स, राइट, वेयरएज एंडिंग इज T2 यहाँ पे हो जाएगा 30 मिनट्स। अब इसको आवर में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे सब आवर में है, अब ऐसे करके तुम करो, अब तुम्हारा यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन का काम, सॉरी इंटीग्रेशन का काम आएगा। यू हैव गिवन द इक्वेशन, ठीक है, उस इक्वेशन में बसा दो, एफ टी इज इक्वल टू T1 टू T2 लिमिट है, एफ टी का वैल्यू ये है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। देखो फाइंड क्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम टाइम 10 मिनट्स, मतलब T1 इज 10 मिनट्स विच इज इन आवर 0.166 टू T2 इक्वल्स टू 30 मिनट्स विच इज 0.5 आवर्स, ओके। सो T1 है तुम्हारा 0.166 और T2 है तुम्हारा 30, ये है 0.5 और ये है तुम्हारा 0.166। अच्छा আগেরটা आंसरটা ভুল ছিল, 4.18 इज द आंसर, ओके। এই আনসারটা দেখো আসছে কি আসছে না, নাকি এটাও ভুল আছে আবার। ম্যাম 11.99 আসছে। ঠিক আছে, আমার এখানে কাছাকাছি 11.676 এরকম দিয়েছি, বাকিদের यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 टी प्लस 10 तो रहेगा, यहाँ पे -2 रहेगा, फिर e⁻ -2t, ठीक है। अब इसको लिमिट दिया है कितना है, 0.5 है T2 और यहाँ पे है 0.166 ना, हाँ 166, दिस इज द लिमिट करके टी का वैल्यू में बिठा के करो। वन 1.86, আচ্ছা বাকিদের প্রত্যেকের এসেছে। আচ্ছা সবাই মাঝখানে এখানে কমেন্টে চ্যাট সেকশনে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে তো, आई मीन नाम लिखবে তো, ঠিক আছে, নাম লিখনা अपना यहाँ पे दिखा ম্যাম नहीं আপনার रहा অ্যানসারটা কত ছিল? কত 11.7 কত আসছে, ঠিক আছে ম্যাম, ওইটা আমি লোয়ার লিমিটটা 1.16 নিয়েছিলাম, 2.6 নিলে ওটাই আসছে। আচ্ছা আচ্ছা।
আচ্ছা ঠিক আছে, শুভজিতের 11.88844, ঠিক আছে, সেটা ডিপেন্ড করে ই এর ভ্যালু কিভাবে না, ঠিক আছে। ভেরি গুড, কৌশিক মান্নাও সেরকমই এসেছে। Shall I proceed to the last question, everyone? বুঝেছো তো Yes, কিভাবে ma'am. করতে হয়? ওকে, ম্যাম ये वाला देखो। 11.84 এসেছে ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সবার মোটামুটি সেটাই কারেক্ট তাহলে, ঠিক আছে। এবার দেখো এটা কি আছে, the Hortense infiltration equation for a basin under is given as इतना, ये है नया इक्वेशन, ठीक है, ये है एफ सी, एफ नॉट माइनस एफ सी, ये है, ठीक है, where f is in millimeter per hour and t is in hours, okay. what are the values of f नॉट एफ सी के? अब ये वाला इक्वेशन से तुमको सिंपल निकालना है कि क्या क्या वैल्यूज है, वो तो निकाल पाओगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इफ अ स्टॉर्म ऑकर्स ऑन दिस बेसिन with an intensity or more than 22 millimeter per hour, ये वाला वो वाला केस आ गया, if I is greater than FC, ठीक है, I is greater than कैपिटल कैपेसिटी, तो F का वैल्यू क्या होगा वही सब, ठीक है, देन FA कितना होगा ये सब, FA will be your FP, याद है ना। अगर आई क्या है, तुम्हारा फूड है, तुम 3 डे से नहीं खाए हो, तुम्हारा फूड है, और तुम कितना कैपेसिटी खा सकते हो ये है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम भूखे थे लेकिन तुमको दिया कितना है, 15 तो फ्रूट्स दिया है, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी कितना है, सिर्फ 5 फ्रूट तुम मैक्सिमम खा सकते हो, तो तुम्हारा एक्चुअल रेट कितना होगा, कितना तुम खाओगे, जो मैक्सिमम है वही खाओगे ना, जितना कैपेसिटी है तो वही है, सो FA इक्वल्स टू FP, ओके। सो यही रिलेशन यहाँ पे दिया है, बोला गया कि अगर इंटेंसिटी इज मोर देन 22 mm पर आवर, ये 22 देखना, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा वो जो एफ नॉट का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एफ नॉट इज नथिंग बट द मैक्सिमम कैपेसिटी, वही है ना। बोला है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट 45 मिनट, मतलब फॉर द फर्स्ट 45, स्टॉर्म जब स्टार्ट हुआ उससे 41st वाला 45, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टॉर्म स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ पे तुम्हारा खत्म हुआ है, सपोज यहाँ पे तुम्हारा 2 आवर्स तक बारिश अगर होगा, ठीक है, तो बोला फॉर द फर्स्ट 45, मतलब कि यहाँ तक सिर्फ t इक्वल्स टू तुम्हारा 45 मिनट्स, तो इसमें कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ वो एफ निकालो, सो T1 इज 0, T2 इज F45, ठीक है, उसको आवर में कन्वर्ट करना, जो पैसे पहले किया था वैसे ही ये वाला। अब सेकेंड में क्या है, सेकेंड में बोला है एंड ऑल्सो डिटरमाइन द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट। अब याद रखो यहाँ पे रेट बोला है, यहाँ पे क्या था, डेप्थ बोला था, मतलब कैपिटल FT, अब यहाँ पे स्मॉल FT निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है क्या, एवरेज, ओके, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर द फर्स्ट 75 मिनट्स, ठीक है। तो सेकेंड केस में बोला है कि यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो इस समय पर जो भी इन्फिल्ट्रेशन रेट था, स्मॉल FT जितना भी था, उसका एवरेज निकालो बोल रहा है, ओके। ना कि ऐसा नहीं बोला, अगर तुम FT इक्वल्स टू इसमें वो सिर्फ t का वैल्यू 75 बिठाओगे, उसका मतलब सिर्फ है कि इस वाले में तुम्हारा FT का रेंज कितना है वही निकलने का, ये जो कर्व आएगा उसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको बोला गया है कि यहाँ से जितना भी तुम्हारा ये वाला जो भी था कर्व में, जो भी इन्फिल्ट्रेशन था, जितना भी सपोज इतना सारा इन्फिल्ट्रेशन रेट हम निकाले थे, तो सबका एवरेज कितना होगा वो निकालने के लिए बोला है, ये याद रखना है, ओके। अगर कोई सिर्फ 75 मिनट्स को यहाँ पे बिठा के FT निकालोगे, दैट विल बी रॉन्ग आंसर, दैट इज ओनली द इन्फिल्ट्रेशन रेट एट टाइम t इक्वल्स टू 75, मतलब 75 मिनट में उसका इन्फिल्ट्रेशन कितना था, बस वही है उसका टाइम मतलब। लेकिन हमको बोला है कि स्टार्टिंग से लेकर 75 तक जितना भी इन्फिल्ट्रेशन रेट था उसका एवरेज निकालो, सेकेंड केस ये है। पहले फर्स्ट केस निकालो, फर्स्ट केस इज इजी लाइक प्रीवियस वन ओनली, फर्स्ट केस निकालो, 7 हम सेकेंड का बोल रहे हैं क्या करना है, जल्दी निकालो। सो हिंट इज दिस वन, फर्स्ट केस क्या है, फाइंड द क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम T1 इक्वल्स टू 0 टू T2 इक्वल्स टू 45 मिनट्स। अब इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.75, ओके। और इक्वेशन ये है, जस्ट इसको इंटीग्रेशन करना है T1 इक्वल्स टू 0 से T2 इक्वल्स टू 45 में, ओके। देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं आंसर, 10.71, कुछ नहीं, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 60 प्लस 16
কি হলো? হ্যালো ম্যাম, ম্যাম লেফট হয়ে গেছে। পুলক দা ম্যামকে একটু টেক্সট করো। হুম। আপনি টেক্সটের সাউন্ড আসছে। ম্যাম লিখছে কিছু একটা। নেটওয়ার্ক ইস্যু। লিভ করা যাবে? ঠিক আছে। ওই প্রবলেমটা দেখো, বাড়িতে গিয়ে চেষ্টা করো, ঠিক আছে? আর নাহলে আমি কন্টিনিউ করবো কালকে। ওকে ম্যাম, আমরা তাহলে লিভ করে যাবো তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা নাম লিখেছো তো চ্যাটে? হ্যাঁ। একটা নাম কেন গো? একটা নাম। এমনি তো গুগল ক্লাসরুমে ওটাও দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, গুগল ক্লাসরুমে দাও তাহলে। এমনি ঠিকই আছে। হুম হুম। থ্যাংক ইউ ম্যাম, লিভ করছি স্যার। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওয়েলকাম ওয়েলকাম।